تو ہم زیادہ سیونز کھیلتے ہیں. اس میں ویٹ جو ہے نا تقریباً جو 7 سائڈ کا جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی منع نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان فیصل انصاری آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں فیصل شان یوٹیوب چینل. آج ہم ناظرین ہیں لاہور خالد بٹی کے ڈیرے پہ، جو کہ کبڈی اور رگبی میں انٹرنیشنل پلیئر ہیں، اور ان کو شاہین و پاکستان کا لقب 2014 میں ورلڈ کپ کے دوران مکھن علی نے نوازا. آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کی زندگی کی. خالد بٹی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اور فیصل شاہین کو وقت دیا. اصل میں خالد بٹی کی بات کریں تو ان کا ملک پاکستان کی کیا، ملک پاکستان کے باہر بھی ان کی کیا پہچان ہے، اور اصل میں خالد بٹی صاحب ہے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام خالد بٹی ہے جی. الحمدللہ میں انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتا ہوں. جو انٹرویو کرنے آئے میرے بھائی ہیں، کافی دنوں سے ٹائم مانگ رہے تھے اور ان سے بڑی محبتیں ہیں، تو الحمدللہ آج ان سے میرا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. تو میں پاکستان لیول پہ کھیلتا ہوں اور ڈیو کلر ہوں الحمدللہ. جی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم جی میٹرک ہے، اور میٹرک کے بعد میں کالج لیول پہ گیا ہوں، لیکن آگے پھر کھیلنے میں مصروف ہو گیا. سپیریئر کالج کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا جی، آپ کو کبڈی کھیلتے کھیلتے کتنا عرصہ اور عمر اب آپ کی کتنی ہے؟ جی میں الحمدللہ 9th میں تھا جب میں نے کبڈی شروع کی. اس ٹائم میری کوئی 15 سال عمر تھی، 15 سے 16 سال، اور الحمدللہ اب میری عمر ہے 38 سال کا ہوں میں. والدین سے بہت پیار تھا، کیا وجہ؟ جی پہلی بات تو والدین ہی ہوتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین بہت بڑا رتبہ ہے، اور میرے لیے جو شاید والدین نے کیا ہے سپورٹس مین کے ہونے کے ناطے پہ بھی، اور ظاہر میں ان کا بیٹا بھی تھا، تو وہ ان سے بہت پیار کرتے. ایک تو میں سپورٹس کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے سپورٹس مین عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ظاہر ان کا نام روشن کیا، اور کافی جہاں پہ بھی جاتا ہوں ان کا نام، والد کا نام آگے آتا، تو اس لیے وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے کہ میں بھائیوں میں سب سے زیادہ ان کو اسی لیے پیار لگتا کہ ساتھ میں سپورٹس مین تھا. اللہ تعالیٰ خالد بٹی صاحب کے جو کو پسند کرتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی والدین ان کے لیے دعائیں مغفرت پڑھیں جی. اچھا جی، والدین سے پہلے اور اب کیا فرق محسوس آپ کرتے ہیں؟ جی بہت فرق ہے کہ والدین جیسی نعمت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کو پوچھ کے دیکھے کہ ابھی میری والدہ تقریباً کوئی 8-9 ماہ پہلے گئی ہے، فوت ہوئی ہے، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. تو والد جو ہے جو 10 میں فوت ہوا ہے، تو والد کے بعد والدہ نے مجھے سنبھالا، اور مجھے ایسے وہی گراؤنڈ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ میرے پہ اتنا بھاری ہو گیا ہے. پہلے جب گھر سے نکلنا والدین کی اجازت لے کے نکلنا، تو والدین ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ کرے کسی کے والدین کو کچھ بھی نہ ہو. جو والدہ ایک ایسی نعمت ہے کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا میں والدہ سے اجازت لے کے نکلتا، والدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے نکلتا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا کتنا بھی بڑا کمپٹیشن ہے نا وہ میرے لیے کوئی بھاری نہیں ہے. لیکن آج مجھے جب میں گھر سے نکلتا ہوں یا گراؤنڈ میں جاتا ہوں، وہی گراؤنڈ مجھے بھاری لگتا ہے. تو میری دعائیں ان کی میرے لیے آج بھی وہ زندہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے وہ کسی کے والدین کو کچھ نہ ہو. والدین جو نا مجھے پوچھ کے دیکھیں، اب میں جس کفیت میں بیٹھا ہوں کہ میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا کہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے یا کتنا معاملات ہوا ہے، میری گیم میں کتنا فرق پڑا ہے، میری پرفارمنس میں، میری دنیا میں کتنا فرق پڑا ہے. والدین سب کچھ ہے. والدین وہ چیز ہے کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو والدین کا چہرہ دیکھتے ہیں تو حج عمر جتنا ثواب ملتا ہے. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پھر دیکھیں جب آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو چارپائی خالی نظر آتی ہے، تو کیا فیل ہوتا ہے بندے کو. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ والدین بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کے علاوہ تو دنیا سمجھ لے کہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے. نہ کوئی گراؤنڈ، نہ کوئی میدان، نہ گھر، نہ کوئی دنیا، یہ کچھ بھی اچھی نہیں لگتی والدین کے بغیر. اچھا جی، والدین میں سے زیادہ کون آپ کو ڈانٹتا تھا؟
देखिए माँ है ना, माँ का जो फिर भी दिल होता है, फिर भी नरमी होती है। तो वालिद वालिद होता है, तो डांटना क्या होता है, प्यार ही होता है। अगर कुछ कह भी गुस्से में सेटिस्फाई बंदा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि उन्होंने क्या डांटना है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे से प्यार करते थे, वालिद भी वालदा भी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से, कहते हैं कि वालिदैन प्यार से दूध की जगह पे पानी भी पिला देना, तो उसमें भी अल्लाह पाक शिफा ताकत देता है, क्योंकि वो उसमें बड़ी बरकत होती है। उसमें बड़ा ही कुछ होता है जो वालिदैन अपने प्यार से पिलाता है, कुछ भी। लेकिन वालिदैन की जो डांट होती है ना, वो मैं समझता हूँ वो आपकी कामयाबियाँ होती हैं, वो आपकी कामयाबियाँ होती हैं, क्योंकि वालिदैन ने वो वक्त गुजारा होता है, तो ये वक्त दोबारा मुड़ के नहीं आता। तो लोग जो सीखने वाले वहाँ से सीख के स्टेप लेके आगे कामयाबियों की तरफ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो अगर वालिदैन ने कुछ कहा है ना, तो कामयाबी के लिए कहा है। अच्छा जी, आप माशाल्लाह बहन भाई कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम जी 3 भाई हैं, एक हमारी बहन है, एक मेरे से बड़ा भाई, एक छोटा है, हमशीरा हमारे सबसे छोटी है। दुनिया में आपकी एक पहचान है, आपकी एक कदर है, तो कामयाबी के पीछे असल में राज क्या है? कामयाबी वही बात आ जाती है कि मुझे लोग पूछते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सन 2000 से खेलने लगा हूँ, स्कूल लेवल से। मैं 2002 में मैट्रिक किया मैंने, तो मुझे आज 20 से 22 साल हो गए हैं खेलते हुए। अपनी उम्र से मतलब कि मैं 14-15 साल की उम्र में खेलने लगा था, और मुझे लोग मसाले देते कि 20 साल 22 साल आप कैसे खेल गए। तो मैं एक ही बात बताता हूँ, क्योंकि आजकल मेडिसिन का दौर तो है। मैं कहता हूँ कि वालिदैन की जो दुआएं होती हैं ना, वो मेडिसिन से बढ़ के होती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ना मायने रखती हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, समझाई ना। तो मैं कहता हूँ कि जो भी जिस जगह पे हूँ मैं, वो वालिदैन की वजह से हूँ, और इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। मैंने सुना हुआ है कि आपने 2 शादियां की हुई है, क्या वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली जो शादी मैं अभी मेरी उम्र 17-18 साल थी, अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना था मेरा, वो मेरी कज़न मैरिज हुई है। 2005 में शादी हुई मेरी। तो दूसरी शादी जो मेरी वो 2013 में हुई है। 14 में जब मैं खेला हूँ जाके वर्ल्ड कप, उससे 1 साल पहले हुई है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है जी, बंदा इसमें क्या कर सकता है, जो नसीब में होता है वही बंदे को। तो उसमें लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो आप ऐसे ही लगा लें, जो पहली मेरी शादी वो अरेंज मैरिज है, तो दूसरी लव मैरिज है, ऐसे ही समझ लें। अच्छा जी, माशाल्लाह आपके बच्चे कितने हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। तो नेक्स्ट भी शादी का कोई प्लान किया हुआ है या 2 शादियां काफ़ी हैं, या पूरा इस्लाम के मुताबिक 4 शादियां करेंगे? देखें जी, इस्लाम में बड़ी नरमी बताई गई है। जैसे आप मेरे किसी वसीले से यहाँ पे आ जाए हैं, इससे पहले आप कुछ ना कुछ काम करती हैं, अब आप मीडिया में हैं, मेरे रिलेटेड जो काम हुआ है ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। जिसने आना ना आपकी ज़िंदगी में, या जिस रिज़्क़ ने आना आपने, वो किसी तरह भी नहीं टाल सकता। अल्लाह की ज़ात जब इज़्ज़त दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये जो मेरे नसीब में हुआ। या जैसे मैं कितने मुल्कों में खेल के आया हूँ, मुझे नहीं पता था मैं कनाडा जाऊँगा, मेरी सोच थी कनाडा जाऊँगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊँगा, लेकिन अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतरी करता है। इंसान तो बड़ा कुछ सोचता है, तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक को पता है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 पहले शादियाँ हैं, इस्लाम में 4 की इजाज़त है। अगर वो असलियत बंदा रख सकता है तो इसमें गुनाह नहीं है। हम मुआशरा कहता हमारा कि लोग कहते हैं कि जो भी कहते हैं, लेकिन हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो हमारा है ये है। लेकिन सोच अच्छी इंसान को रखनी चाहिए, और ज़िंदगी होनी चाहिए इंसान की। 2 शादियाँ या 3 शादियाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए गुड लक है, मेरे जो बच्चे हैं या मेरी बीवियाँ आई हैं ना, वो अपना रिज़्क़ लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बात करता हूँ कि मेरा पहले शादी के बाद टूर हुए हैं जितने भी हैं। उसके बाद जब मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ, तो उससे पहले मेरी एक बेटी अल्लाह पाक ने मुझे 20-25 दिन पहले दी है। तो साथ ही मुझे अल्लाह पाक ने वर्ल्ड कप में मौका दे दिया है कि देखें कि उनका अल्लाह पाक ने रिज़्क़ भेज दिया है। तो फिर मैं कैसे कहूँ, मेरा मैसेज ये है कि बंदे को हराम खाना नहीं चाहिए या ज़नाकारी से बचना चाहिए। तो दूसरा है जो शादियों में कोई गुनाह कोताही नहीं है, वो
अल्लाह पाक की तरफ से अगर हुक्म है तो अगर आप वसीयत रखते हैं तो कर लेनी चाहिए। तो शादी से पहले किसी ने दिल तोड़ा या मौका नहीं दिया आपने? दिल चीज़ ही ऐसी है कि को लम्हात मौके आ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में इतने बिज़ी थे, स्पोर्ट्स में इतने बिज़ी हैं को ऐसा वैसा ध्यान बुरी आदतों की तरफ जाता नहीं है, ना किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दिल भी कई तरह का कहते हैं ना, दोस्तों में भी होता है, प्यार में भी होता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं, दिल कैसा टूटा है, दोस्तों में है या मतलब कि होता ना, कोई लड़की वगैरह भी लाइफ में आ जाती है, कोई कहीं बंदा खेलने गया होगा, कोई ना कोई तो चांस हो सकता है। ये तो काफ़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन टूटने से अल्लाह पाक का शुक्र है कि लोग फ़ैन फॉलोवर हैं, तो कोशिश तो करते हैं इन चीज़ों से बचें, लेकिन ऐसा हादसा अभी तक हुआ नहीं। अगर हुआ होगा तो लेकिन इतना याद नहीं। अभी कामयाबियाँ रब ने इतनी दे दी हैं, अल्लाह पाक ने कामयाबियाँ इतनी दे दी हैं, क्योंकि जो नाकामियों का जब शिकार बनता है ना, उस वक्त ये चीज़ें याद आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब ने, अल्लाह पाक की ज़ात ने इतनी कामयाबियाँ देती हैं कि छोटी मोटी चीज़ें याद नहीं रहती। अच्छा जी, स्पोर्ट के साथ साथ इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात है? स्पोर्ट्स के साथ साथ जी, पहली बात तो मैं अपने घर वालों का मैं जितना भी, वो तो मेरे लिए दुआ गो हैं, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो, अपने वालिदैन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, और आज तक मुझे कोई ऐसी मसरूफियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़ानदानी प्रॉपर्टी का काम है जो मेरे भाई साथ कर रहे हैं, मैं जाता हूँ ऑफिस वगैरह, हमारा इधर कंस्ट्रक्शन का भी काम है, प्रॉपर्टी का भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िम्मेदार घराने से हैं। तो मतलब कि मेरी मसरूफियत इतनी नहीं है, अल्लाह पाक ने आज तक भी सुख दिया, बच्चे भी हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, तो मतलब कोई परेशानी भी नहीं है। और जो बिज़नेस हमारा वो साथ प्रॉपर्टी का है, और भी छोटे मोटे बिज़नेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है। मतलब कि भट्टी साहब कबड्डी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पार्टी से भी हैं, तो वर्ल्ड कप 2020 की बात करें तो इसके अंदर कोई मुश्किलात तो आई होंगी किसी न किसी तरफ से? जी, वर्ल्ड कप तो ज़ाहिर है, आपको पता है इतना बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, पूरे पाकिस्तान का कैंप लगा है। ये वर्ल्ड कप में जो टीम खेलती है ना, जैसे कहते हैं रेलवे पाकिस्तान, वापडा, जितने पाकिस्तान के महकमे हैं, नेवी, आर्मी, ये इन सब का जो ना लगा है, कैंप लगा है। उनमें से 100 लड़का था उन्होंने कोई 16 से 17 लड़कों की मतलब कि सिलेक्शन की। तो ज़ाहिर नेशनल गेम में उधर हुई, मैं रग्बी खेलने के लिए गया हूँ जब, तो उधर से एबटाबाद में हमारे रग्बी के मैच हुए, तो उसके फौरी बाद 5-6 हफ्ते, एक वीक के बाद वर्ल्ड कप शुरू हो गया। तो मुझे जब मैं उधर से आया हूँ तो मेरे से पहले कोई हफ्ता एक वीक जो गुज़र गया जो ना कैंप, फिर मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने ट्रेनिंग की जब उनके साथ, तो थोड़ी मुझे मुश्किलात आई। उसके बाद जब सिलेक्शन हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रायल दे के ऊपर आया हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, उनकी हर डाटा वीडियो हर चीज़ बनी है। लेकिन मुश्किलात शुरू से ये आई है कि वो सारे फैसलाबाद के लड़के हैं, पाकिस्तान लाहौर का वाहद मैं अकेला हूँ, लाहौर का मैं अकेला हूँ जो बंदा। तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि जहाँ पे एक कोई 50 से 60 लड़के एक साइड के हों, और मैं कल अकेला लाहौर का, तो काफ़ी चीज़ें 2 महीने का तो जब कैंप हुआ तो इन चीज़ों की मुझे मुश्किलात आई। अच्छा जी, वर्ल्ड कप 2020 में कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको सारी ज़िंदगी ताहयात याद रहे? जी बिल्कुल, सिलेक्शन के टाइम पे जब हुआ है, जो मामलात के उस टाइम बड़ा सीन था इस तरह का। एक तो पहले ट्रायल पास किए, उसके बाद मेरिट इतना हो गया कि ये नहीं पता था क्या बनना है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि फिर जब मेरा टीम में नाम आया, अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी कारकर्दगी के बावजूद भी फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि पता नहीं क्या हो जाना है। तो मेरे लिए बड़ा एजाज़ था, मेरे लिए बड़ा कुछ था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप खेल लेना मेरे लिए बड़ा एजाज़, क्योंकि हम चंद लड़के थे जो काफ़ी उनमें पुराने खेल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टाइम गेम कर रहे हैं। मतलब कि मुशर्रफ जंजवा था, माना जट था, मैं हूँ, सजाद गुज्जर है, एक अदा लड़का और बाकी न्यू टैलेंट था। तो ये चीज़ों से काफ़ी जो ना मैं मुतासर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे मौका मिला। अच्छा जी, आप पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कोई ना कोई अगर जाती है या रेटर है,
उनको मुश्किलात या उनको हिचकिचाहट तो महसूस होगी अगर रेडर है यार ये जाफी मेरे सामने आ गया, अब मुझे संभल कर रेड करनी पड़ेगी, इस तरह का कोई है कोई खिलाड़ी पाकिस्तान से अंदर या पाकिस्तान के बाहर? जी आप इंडिया का पूछ रहे हैं या पाकिस्तान का पूछ रहे हैं? जो आप पाकिस्तान के अंदर लगा लें या पाकिस्तान से बाहर, दोनों में। नहीं, जो ना पाकिस्तान में भी हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इंडिया में वो आया था, उनका अर्श चोला आया था, तो वो बहुत अच्छा खेला। मतलब कि पता चलता था कि जब हमारे रेडर जाते थे कि कोई पता नहीं क्या हो जाना है। मतलब कि इतना टफ़ टाइम उसने दिया अर्श चोले ने ना, जो बहुत अच्छा खेला है। मुखालफिन टीम तो हमारी है वो, लेकिन जो प्लेयर वो प्लेयर ही होता है, प्लेयर की तारीफ़ करनी चाहिए। तो हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर फिर आपको पता है कि आगे जो अशफीक चिश्ती था, तो उससे ज़्यादा माना जट था, जिन्होंने रेडी डाली, उनको बड़ी टफ़ टाइम दिया। काश और अगर खिलाड़ी की बात करें, टैलेंट की बात करें, असल में खिलाड़ी वही होता है कि जो अप्रिशिएट करे, दूसरे को हकीकी लफ्ज़ों में याद करे कि उसने वर्क ठीक किया, उसकी मेहनत ही असल में हकीकत होती है, उसकी मेहनत जज्बा यही असल में कुव्वत होती है जो कि एक आम आदमी को स्टार बनाता है। तो आपने इंटरनेशनल सतह के ऊपर कितने टूर किए हैं कबड्डी में और इसके अलावा रग्बी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ना रग्बी में मेरे कोई 10 से 12 टूर है एशिया के मुल्कों में। ठीक है। एशिया लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं रग्बी का कैप्टन भी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने ये भी एजाज़ दिया है तो मैं बेसिक कबड्डी का हूँ, लेकिन जब मैं पुलिस में था, पहले पुलिस में रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापडा में, तो उस टाइम मैं पुलिस से जब उसमें कबड्डी के मैं दूसरे में था, क्या कहते हैं, कैंप में था, तो वहाँ से कॉल आई कि रग्बी की लड़की चाहिए। मैं पता ही नहीं था रग्बी क्या है। ऐसे ही। तो फिर मैं रग्बी के कैंप में ज्वाइन, जब पहली दफ़ा कैंप ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहली दफ़ा ही बेस्ट नाम मुझे मिला। तो वहाँ से मेरी रग्बी स्टार्ट हुई, जिसमें मैं पाकिस्तान टीम का कैप्टन रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 से 12 टूर हैं। और जो कबड्डी है इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई यूरोपियन मुल्कों के, कनाडा गया हूँ, इंग्लैंड वगैरह 3-4 टूर हैं मेरे। तो इधर स्पेन का मेरे पास शेंगन वीज़ा है, ये भी कोई 8 से 10 मुल्कों में खेल के अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। अच्छा जी, आप थोड़ा सा ना वजाहत कर दें ज़रा सा कि रग्बी क्या चीज़ होती है, कैसे खेलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इतनी नहीं खेली जाती, सिर्फ नाम जब सुनते हैं ना रग्बी, पता नहीं वो कहते हैं कि रग्बी क्या चीज़ है। आपके जो फ़ैन फॉलोवर वो बहुत मिस करते हैं कि रग्बी के बारे में भी हमें बताया जाए। जी क्यों नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अब तो बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया रग्बी का काफ़ी इलाकों में, फोटाबाज आगे काफ़ी जो ना पिंडी वाली साइड पे तो हैं लड़के। ये गोरों ने ईजाद की है, ये वहाँ से रग्बी निकली है। जैसे गरमा टाइप होता है ना, गरमा फुटबॉल की तरह होता है, जैसे गरमा इस तरह का। तो ये जो ना पाकिस्तान में पहले कम, जब मैं 2006 में आया हूँ ना रग्बी में, तो उस टाइम कम खेली जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वापडा की टीम मैंने बनाई आके, अल्लाह पाक का शुक्र। मैं पाकिस्तान वापडा कंपनी का जो ना मैंने टीम बनाई, लड़के भर्ती किए, 10 से 12 कबड्डी वाले लड़के भर्ती किए हैं। तो अब तो गांव-गांव में चली गई है, अब तो काफ़ी तारुफ हो गया इसका। ये कि अब नौकरियां लोगों को मिल गई, लोगों की रोज़ियां लग गई, अब लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। फिटनेस लेवल बंदे का ठीक हो तो रग्बी और कबड्डी का ना थोड़ा सा स्टेप वगैरह मिलते हैं। अच्छा जी, रग्बी के उसका वेट तकरीबन कितना होता है और उसके जो साइज़ है, साइज़ कितना का होता है? 2 तरह की रग्बी होती है, एक 15 साइड है, 14 लड़के खेलते हैं, उसमें रिज़र्व होते हैं 14, 10 रिज़र्व होते हैं, उसमें 24 की टीम होती है। और एक 7 जो मैं खेलता हूँ वो ज़्यादा 7 की है, उसमें 14 की टीम होती है। 7 हम जो ना पहली साइड पे खेलते हैं, पहली जो हमारा जो फर्स्ट साइड होती है ना, वो 7 लड़के खेलते हैं। तो 7 साइड होती है, एक 15 साइड होती है, तो हम ज़्यादा 7 खेलते हैं। उसमें वेट जो है ना तकरीबन जो 7 साइड का जो होता है ना, उसमें कोई मना नहीं है, 90 kg वाला भी खेल सकता है, 85 में भी तकरीबन ज़्यादा इस तरह के होते हैं, 90, 85, 80, 75 इस तरह के जो 7 खेलते हैं। जो 15 में खेलते हैं उसका वेट ज़रा हाई होता है, उसमें ज़रा ज़्यादा टैकल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस उस्ताद ने या किस सीनियर ने आपको ज़्यादा गाइड किया? इसके बाद आ जाता है कि आपका जो ज़ाती कोच वो कौन है और उनका नाम क्या है? जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती कोच जो है वो उस्ताद शरीफ साहब हैं। उस्ताद शरीफ साहब वो मेरे जो हैं, वो उस्ताद भी क्या हैं, वो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर वो होते हैं जिनको डिग्रियाँ मिलती हैं, जिन्होंने वक्त गुजारा होता है।
استاد کے بعد جو پروفیسر بہت بڑے ہوتے ہیں، جیسے MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے ڈگریاں لے کے آگے پڑھ کے جاتے ہیں، جیسے جیسے بندہ، اس طرح میرے استاد ہیں جو نا الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مجھے اس نے جس کی جگہ پہ آج میں ہوں نا، اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کی وجہ سے میں جدھر بھی ہوں کہ ظاہر ہے اتنے سے بڑے پلیئروں میں کھیلا ہوں، ٹیکنیکل پوائنٹ مجھے انہوں نے بتایا ہے۔ جو استاد ہے میرا نا وہ بہت قابل آدمی ہے، اس کو جنرل ضیاء نے 88 میں اس ٹائم سائیکل دیا تھا میچ کھیلتے ہوئے اسلام آباد میں، پنڈی میں میچ ہوا تھا، جنرل ضیاء نے اس ٹائم سائیکل ایسا تھا جیسے آپ کو کار مل گئی ہے، ٹی وی نہیں ہوتے تھے اس ٹائم، یہ 88 کی بات کر رہا ہوں، 86 کی ہماری پیدائش ہے، تو میں استاد کا شاگرد مجھے فخر ہوتا ہے۔ باقی تو پھر کافی کوچز صاحبان جو ہمارے ہیں، عباس بٹ صاحب ہیں، ان کے پاس بھی میں نے ٹریننگ کی ہے، طاہر بھائی جٹ صاحب ہیں، ان کے پاس ٹریننگ کی ہے، مطلب کافی اور بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ چوری محسن وابڈا کے، جو مطلب کہ ایسے کوچ ہیں جن کے پاس میں نے ٹریننگ کرتا، لیکن بیسک جو مجھے ٹریننگ کرائی ہے نا وہ مجھے میرے استاد شریف صاحب ہیں۔ جو اپنے استاد کی رسپیکٹ نہیں کرتے یا عزت نہیں کرتے، ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ان کے لیے اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے جو اپنے والدین کی، جو میں سمجھتا ہوں جو اپنے والدین کی نہیں نہ کرتا وہ کسی استاد کی، کسی دوست کی، کسی گیدرنگ میں جا کے نہیں کرتا، جس نے اپنے والدین سے اپنی بیسک اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے کہ جو بھی ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں نا، تربیت تعلیم جو بھی ہے، کہتے ہیں نا تعلیم ہونا ضروری نہیں ہے، تربیت ہونا ضروری ہے۔ ڈگریاں آپ جتنی مرضی لے لیں، جتنا مرضی پڑھ لیں، جب تک آپ کی تربیت نہیں نہ ہوگی وہ ڈگریاں کسی کام نہیں ہے۔ لیکن بیسک چیز وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو والدین کی گھر سے عزت کرے گا وہ آگے استاد کی بھی کرے گا، اور جو نہیں کرتا وہ سمجھ لے کہ کسی میدان میں پڑھائی کے ہو یا کھیلوں کا ہو وہ کامیاب نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اور سب سے الحمدللہ بات ہے کہ مسلمان ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان ہے، جو حدیث کا مفہوم ہے نا، اللہ پاک اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے نبی سے یا بڑی جو وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ آج جو دنیا چل رہی ہے نا ان کی وجہ سے چل رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو ان کی نہیں نہ کرتے وہ کسی میدان میں نہیں کامیاب۔